Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at IS Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, in continuation of Master Concept Series for GATE CS 2024, students, in first video lecture, I have discussed limit, agree, and I hope आप सभी ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियोस देखा होगा. अकॉर्डिंग टू द लेक्चर प्लान स्टूडेंट, ये हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया है. स्टूडेंट, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं. अगर नहीं देखा है, बेहतर होगा कि आप फर्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखें जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया है. In today's lecture, students, I will discuss about concept of limit. What is limit and what is the existence of limit? And also I will tell you what is the reason I chosen this topic. ठीक है, किस वजह से मैंने ये टॉपिक चूज किया है, क्यों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Students, according to the lecture plan, I will discuss next topic in the same sequence. ये बात समझ में? And in the last lecture I will discuss concept of probability. 18th, 17, 18, 19 and 20 I will discuss concept of probability, which is most important topic. Okay my dear students, so without wasting the time, let us we understand what is the limit. Okay student, if I talk about limit, then limit x approaching to fx equal to capital L. My dear student, LIM is just a symbol. ठीक है, limit whose meaning is limit. But what you mean by limit x approaching to a fx equal to capital L? पहले एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं. According to the definition, it would mean that when we approach the point x equal to a from the values which are just greater than or smaller than x equal to a, fx would have a tendency to move closer to the value L, which is equivalent of saying modulus of fx minus L less than epsilon for all x whenever modulus x minus a greater than 0 less than delta, where epsilon and delta are superficial small positive numbers. Sir, it was very confusing in 11th and 12th as well as in engineering. मैं इंजीनियरिंग में आ गया, ये डेल्टा और एप्सिलॉन सर बहुत परेशान करता है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर एक बार एप्सिलॉन एंड डेल्टा की डेफिनेशन का इंट्यूशन क्रिएट हो गया तो लिमिट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. मैं ज्योमेट्रिकली इसको समझाने की कोशिश करता हूं. सपोज दैट दिस वन इज माय y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, and there is a critical point x equal to a. ये मेरा y equal to fx ग्राफ है. ठीक है, और इस ग्राफ में स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? x equal to a क्रिटिकल पॉइंट पे हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है. आउटपुट इनडिटरमिनेट फॉर्म का है. यहां पे मैं आउटपुट डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं. देयर इज अ इनपुट x equal to a. करेक्ट, x equal to a. कुछ ना कुछ इश्यू है. x equal to a is a critical point. ठीक है, when you are not able to find the output at x equal to a, then approach x equal to a. Approaching का मतलब either take the input from left hand side or take the input from right hand side and observe what is the output. Correct? This one is a plus h, a minus h. My dear student, a plus h is known as right hand side. किसका? a का. a minus h left hand side. Correct?
L plus epsilon, L minus epsilon. So I can assume it L. समझिएगा इसने क्या बोला, f of x at x equal to a, आउटपुट में कुछ इश्यू है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, मैं आउटपुट नहीं निकाल पा रहा हूं. गो टू द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब पास, पड़ोस में, नेबरहुड पॉइंट्स पे जाइए. लेफ्ट से अप्रोच करिए, राइट से अप्रोच करिए. a माइनस एच और a प्लस एच पे अगर स्टूडेंट आउटपुट l के अराउंड आ रहा है, मतलब एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, मतलब हम यहां पे a को अप्रोच कर रहे हैं तो आउटपुट भी एक सिंगल वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, देन यू कैन से लिमिट इज एग्जिस्टिंग इन नेचर एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx इक्वल टू l. ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, x इक्वल टू a एक पॉइंट है, मैंने लेफ्ट से अप्रोच किया, राइट से अप्रोच किया, करेक्ट, a पे नहीं, एग्जैक्टली a पे नहीं, स्लाइटली लेस देन a, स्लाइटली मोर देन a, और उन पे आउटपुट्स को देखा, आउटपुट l के अराउंड ही है, और वो डिफरेंस कितना हो सकता है, कितना अलाउड है डिफरेंस, l माइनस एप्सिलॉन या l प्लस एप्सिलॉन. अब जो स्टूडेंट्स आउटपुट ये l आया है, दैट इज वैल्यू ऑफ लिमिट, करेक्ट. a के अराउंड जितने इनपुट हैं सबको x मान लिया, ठीक है. a के अराउंड जितने इनपुट हैं सबको a मान लिया, और एक फिक्स इनपुट है a, तो इनके बीच का डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x a नहीं हो सकता, a के आसपास. इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन डेल्टा, ठीक है. डेल्टा बहुत छोटी नंबर है, मतलब a और उसके आसपास, मतलब विसिनिटी पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस डेल्टा के बराबर होना चाहिए. सिमिलरली इन सारे x के आउटपुट को आप f ऑफ x से डिनोट करिए. जो a पे आउटपुट आया उसको l से, उस पे तो आउटपुट आ ही नहीं रहा था, तो जो f ऑफ x के सारे आउटपुट आए वो किसी ना किसी पॉइंट के अराउंड आए होंगे. दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन एप्सिलॉन. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, देन यू कैन से लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx इक्वल टू l. इसका मतलब स्टूडेंट, अगर लिमिट की एग्जिस्टेंस होगी तभी आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं, अदरवाइज इवैल्यूएशन अलाउड नहीं है. अब देखते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट. देख लीजिए, वन साइडेड लिमिट, हमने क्या क्या बात करी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट LHL. LHL क्या होता है, लिमिट x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव f ऑफ x. मतलब आप क्या करिए, f ऑफ a मत इवैल्यूएट करिए, a के स्लाइट लेफ्ट में आउटपुट निकाल लीजिए, और इसका आसान तरीका, लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस h. हमने x की जगह क्या रख दिया स्टूडेंट, a माइनस h. h क्या है, सुपरफिशियल स्मॉल पॉजिटिव नंबर, a से स्लाइटली लेसर वैल्यू पे आउटपुट. दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x approaching to a positive f of x, that is also can be evaluated using h approaching to 0 f of a plus h. a पे इवेल्युएट ना करके a से स्लाइटली मोर देन, ठीक है. वो स्लाइटली क्या है स्टूडेंट, h सुपरफिशियल स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h वही हमारा डेल्टा है ये, और कुछ नहीं है. h सुपरफिशियल स्मॉल पॉजिटिव नंबर. देन माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या मिल गया स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया, राइट हैंड लिमिट मिल गया. वो कैसे इवैल्यूएट करते हैं इसका फॉर्मूला मिल गया. जब भी आपको यूज करना हो LHL, इस फॉर्मूले का यूज करिए, ठीक है. जब भी आपको यूज करना हो राइट हैंड लिमिट, आप इस फॉर्मूले का यूज करिए. देन व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, limit of the function exist at x equal to a if and only if
both one-sided limit exist at x equal to a and have the same value. आई बात समझ में? That is limit x equal to a fx equal to l. If and only if, ये तभी लिखा जा सकता है if and only if limit x approaching to a negative f of x equal to limit x approaching to a positive f of x equal to capital L. Simply if limit h approaching to 0 f of a minus h equal to limit h approaching to f of a plus h equal to capital L, then limit x approaching to a f of x equal to capital L. If left hand limit equal to right hand limit equal to capital L, then the value of limit is capital L. अब देखो स्टूडेंट्स, गेट में क्वेश्चन कई बार आता है, इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स. ऑप्शन ए सम वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू. ऑप्शन बी सम न्यूमेरिकल वैल्यू. ऑप्शन सी सम न्यूमेरिकल वैल्यू. ऑप्शन डी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर स्टूडेंट किसी एक ऑप्शन में लिमिट डजंट एग्जिस्ट लिखा है, आप पूछ रहे होगे ना, आपको ये दिमाग में चल रहा होगा कि आप एग्जिस्टेंस क्यों पढ़ा रहे हैं, एग्जिस्टेंस तो पूछा नहीं जाएगा. माय डियर, पूछा जाएगा. किसी भी ऑप्शन में अगर एग्जिस्टेंस है तो आपको डायरेक्ट इवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए. क्यों डायरेक्ट इवैल्यूएशन कर दिया, अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया कुछ और वैल्यू आ रही है, किसी ने राइट हैंड लिमिट निकाल दिया कुछ और वैल्यू आ रही है, तब तो लिमिट कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता. मतलब हर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इवैल्यूएट नहीं की जा सकती है. केवल उन्हीं फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इवैल्यूएट की जा सकती है जिनकी आउटपुट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम आ रहे हो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और दोनों अगर सेम आ गए दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट. भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गए दैट इज एल, तो दैट इज वैल्यू ऑफ द लिमिट. करेक्ट. देखिए मान लो एक क्वेश्चन आ गया, गेट में एक क्वेश्चन आया. अगर स्टूडेंट ऑप्शन ए में न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑप्शन बी में न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑप्शन सी में न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑप्शन डी में भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, देन प्रोसीड डायरेक्ट इवैल्यूएशन. बट एक ऑप्शन में डजंट एग्जिस्ट है विदाउट कंफर्मेशन कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, आप प्रोसीड नहीं कर सकते इवैल्यूएशन को. ठीक है. अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां बनती है फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट. आई बात समझ में? सो स्टूडेंट गो फॉर दैट. लिमिट LHN इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h. ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट जिसके अराउंड हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है. लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h. I considered a equal to 0. Correct? Student, f of x is modulus x upon x. So, f of 0 minus h, just replace x by 0 minus h. So, this equal to limit h approaching to 0 modulus 0 minus h upon 0 minus h. Correct? Student, modulus function की functionality क्या होती है? मॉडुलस फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या होती है? किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाना, मतलब उसकी मॉडुलस वैल्यू लेना. मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, x
इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जब ऑलरेडी x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस की कोई जरूरत ही नहीं है। लाइक मॉडुलस में 1 लिख दो, 1 ही आउटपुट आएगा, 2 लिख दो, 2 ही आएगा, 3 लिख दो, 3 आएगा, √2। इफ x इज पॉजिटिव देन देयर इज नो नीड ऑफ मॉड x, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट हम यहां -x लिखेंगे कब? व्हेन x लेस देन 0। भाई x हमारा क्या है? -2, -2 के आगे माइनस लगा दो तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो चाहे मॉडुलस x लिखो, चाहे x और -x लिखो, इस केस में x, इस केस में -x, करेक्ट। अब यहां पे जरा देखिए, मॉडुलस -h, -1 को मॉडुलस क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो यहां पे रिजल्ट मिलेगा, यहां लिखते हैं नीचे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, h अपॉन -h दैट इज इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड लिमिट स्टूडेंट कितना आ गया? -1। जो जल्दबाजी करेगा, ओ माय गॉड ऑप्शन बी में तो -1 है, यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। नो, पहले वेरीफाई करिए, ठीक है। नाउ राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट, राइट हैंड लिमिट RHL इक्वल टू लिमिट, सेम प्रोसीजर स्टूडेंट, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f of a plus h. So what is the value of a? 0. Limit h approaching to 0, f of 0 plus h. Replace x by 0 plus h. Limit h approaching to 0 modulus 0 plus h divided by h. So mod h is positive, small positive number, ठीक है, h is small positive number, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉडुलस h क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। h अप्रोचिंग टू 0, इट्स h अपॉन h दैट इज इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू -1 एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू +1। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। Left hand limit, conclusion is that left hand limit is not equal to right hand limit, hence limit doesn't exist, limit doesn't exist. If limit doesn't exist, so option D is correct. ये स्टूडेंट गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो -1 आ रहा था, राइट हैंड लिमिट देखें तो 1 आ रहा था, दोनों ही ऑप्शन सही थे। वैल्यू ऑफ लिमिट 0 पे अगर देखा जाए, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखा जाए, तो यहां हम 0 के अराउंड लिमिट नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो स्टूडेंट ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टूडेंट टेक अ पॉज एंड ट्राई दिस वन इन सिमिलर मैनर। अगेन स्टूडेंट ऑप्शन ए 5/e, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी डजंट एग्जिस्ट। ये MCQ का क्वेश्चन है जिसमें सिंगल आंसर सही होगा और उसमें से एक ऑप्शन है डजंट एग्जिस्ट। तो यू मस्ट प्रोसीड विथ फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। आई मीन टू से फर्स्ट इंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, करेक्ट। दैट वॉज द रीजन आई चूज इन दिस टॉपिक, कि यहां बच्चा कंफ्यूज होता है और डायरेक्ट इवैल्यूएशन करता है। लेफ्ट हैंड लिमिट आया तो उसको टिक कर देता है, राइट हैंड लिमिट आया तो उसको टिक कर देता है, करेक्ट। जरा इसको अटेम्प्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ स्टूडेंट 0 a minus h that is equal to limit h approaching to 0 f of 0 minus h. Substitute x by 0 minus h in the given function. This equal to limit
h approaching to 0, 5e whole divided by e square plus e power 1 upon x। अब हम यहां पे स्टूडेंट 1 अपॉन एक्स की जगह क्या रख देंगे, 0 माइनस एच, रिप्लेस इट बाय 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें स्टूडेंट e पावर माइनस एक्स, दैट कैन बी रिटन एज e पावर x। इन सिमिलर मैनर e पावर माइनस 1 अपॉन h कैन बी रिटन एज 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन h। करेक्ट। नेगेटिव पावर हो तो डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, सिंपल मैथ। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h approaching to 0, 5e whole divided by e square plus 1 upon e power 1 by h। Now substitute the value of the limit h approaching to 0। Student 1 by 0, 1 by 0, it's approaching to infinity, 1 by 0 approaching to infinity। So e power infinity approaching to infinity, 1 upon infinity approaching to 0। आई बात समझ में? ये सारा डिस्कशन मैंने पार्ट 1 में किया हुआ है, ठीक है। इंफिनिटी की सारी प्रॉपर्टी जिन्होंने नहीं देखा है, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, स्टूडेंट गो टू द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। पहले लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में जाइए, आप लोगों को ये मिल जाएगा कैसे मैं इतना आसानी से कैलकुलेट कर रहा हूं। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 5e होल डिवाइडेड बाई e स्क्वायर। स्टूडेंट दिस कैन बी रिटन एज 0, सो दिस इक्वल टू 5 by e upon e square, 5 by e। Correct? This one is left hand limit. Now the turn is right hand limit. What would be the right hand limit? Equal to limit h approaching to 0, f of a plus h। Now that is equal to limit h approaching to 0, f of 0 plus h। आई बात समझ में? स्टूडेंट आई कैन राइट इट इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 5e होल डिवाइडेड बाई e स्क्वायर प्लस e पावर 1 अपॉन 0 प्लस h। करेक्ट। सिंप्लीफाइड फॉर्म लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 5e होल डिवाइडेड बाई e स्क्वायर प्लस e power 1 by h। Again student, h approaching to 0, 1 upon 0, infinity, e power infinity, infinity plus something, infinity plus e square approaching to infinity, infinity plus something, यहां पे क्या आ जाएगा, infinity plus something, infinity। Student, finite number divided by infinity, 0, कितना आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 5e, या डायरेक्ट लिख देते हैं, अब तो कैलकुलेट कर दिया, 5e डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगेन माय डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL is not equal to right hand limit, hence limit doesn't exist, hence limit does not exist। Answer is option D। ऑप्शन डी में क्या है, doesn't exist। फिर से सुनिए स्टूडेंट मेरी बात, अगर क्वेश्चन MCQ का है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर सम न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो प्रोसीड विथ डायरेक्ट इवैल्यूएशन, देन नो नीड टू चेक एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। स्टूडेंट, इफ द क्वेश्चन इज नेट टाइप,
अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है गेट में, ठीक है, अगेन प्रोसीड विद द डायरेक्ट इवैल्यूएशन। बट अगर कोई भी ऑप्शन स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट है तो यू मस्ट चेक एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। I mean to say left hand limit, evaluate left hand limit, evaluate right hand limit. If they are equal, left hand limit equal to right hand limit, तो आपको इवैल्यूएशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, वही लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। जितना लेफ्ट हैंड लिमिट आता है वही राइट हैंड लिमिट आता है, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ द लिमिट आता है अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है। करेक्ट? तो ये स्टूडेंट ट्रिक थी, इसको इसी वजह से मैंने ये टॉपिक चूज किया कि कभी भी ऐसा अगर होता है कि एक ऑप्शन में स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट लिखा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। करेक्ट? सो स्टूडेंट, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा, I were discussed about concept of infinity, then I discussed in second part indeterminate form, और आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने कवर किया कंसेप्ट ऑफ लिमिट, जिसमें दो चीजें की, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट, एप्सिलॉन एंड डेल्टा की डेफिनेशन को हमने समझाया स्टूडेंट, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। आई ऑल्सो डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। माय डियर स्टूडेंट, I will discuss differentiability in the next part. Next part में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? Differentiability, where I will discuss what is differentiation and what is left hand derivative, what is right hand derivative, what is instantaneous rate of change, what is average rate of change, and in the continuation I will discuss, I will follow same lecture plan. और स्टूडेंट, अगर आप कंटिन्यूअसली ये सारे टॉपिक्स को वन बाय वन स्टूडेंट देखते चले गए तो आपका एटलीस्ट पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 90% का कवरेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने वही टॉपिक्स उठाए हैं जहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, जहां पे कंसेप्ट में इंट्यूशन, कंसेप्शन और इनोवेशन की जरूरत होती है, वही टॉपिक्स हमने उठाए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।